سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعت زندگی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا جس میں نعت زندگی ہے کے عنوان سے ان تاریخ کے ان خوشبخت احباب کا، ان ہستیوں کا ذکر ہم چند لمحوں میں کرتے ہیں کہ واقعی جن کی زندگی نعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور آج بھی جب ان کا حوالہ آتا ہے، آج بھی جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو نعت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا صحابہ کرام کی زندگی سے، ان میں چند صحابہ کرام کا ذکر کیا، اور آج میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خوشبخت شعراء میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہوئے حضور کی مدح و ثنا کرنے کی توفیق اور یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ اشعار جو کتب سیرت میں ہمیں ملتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہیں۔ اور پھر آپ کی جو شاعری کا جو نمایاں پہلو تھا، یہ چند شعراء جن کا ذکر ہم کر رہے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو اعتراضات مشرکین کرتے تھے، منافقین کرتے تھے، تو خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے، اور ان کی اشعار میں، اپنے اشعار کی صورت میں جو باتیں وہ کرتے تھے ان کا رد بہت خوبصورت انداز سے شاعرانہ پہلو میں کیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک نعت کے 3 اشعار کا انتخاب میں نے آپ کے لیے آج اس پروگرام میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح الفداء لمن اخلاقہ شہادت بانہ خیر مولودی من البشر، میری روح قربان ہو اس ذات پر جس کے اخلاق اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ بنی نوع انسان میں سب سے بہتر فرد ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ امت فضائلہ کل العباد کما ام البریہ ذوی الشمس والقمر، ان کے احسانات ساری مخلوق پر کے لیے اس طرح سے عام ہیں جیسے چاند اور سورج کی روشنی ساری دنیا کے لیے عام ہے۔ اور یہ شعر بہت معروف ہے اور بہت ساری جگہوں پہ اس شعر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ لو لم تکن فیہ آیات مبینات کانت بوجہہ تنبیک بالخبر، اگر ذات گرامی میں دوسری روشن دلیلیں نہ بھی ہوتی تو خود آپ کا چہرہ انور تم کو حقیقت بتا دیتا۔ کیا خوبصورت اشعار اور کیا خوبصورت پیرائے میں اظہار کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور یہ معراج پاک کا مہینہ ہے، رجب المرجب کے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ معراج پاک کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اپنے چند اشعار میں آخر میں اختتام سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کر کے آپ کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہ کیا خوبصورت پہلو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں معراج پاک کے حوالے سے کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردن۔ آپ کی طرف یہ دعوت فکر دیتے ہوئے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز و محترم خوبصورت لب و لہجے کے ثنا خان جناب محمد افضل نشاہی۔ السلام علیکم جناب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام نعت زندگی ہے میں تشریف لائے، اور یقیناً آپ نعت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کو نعت کے حوالے سے
پہچانا جاتا ہے، اور یہ پہچان ایسی معتبر ہے، ایسی خوبصورت ہے، اور یہ حوالہ ایسا خوبصورت ہے کہ اس کی جتنی بھی اس پر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز آپ خوبصورت کلام سے اور حمد باری تعالیٰ سے اگر ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، سا حسین آیا نہ آئے گا، سا حسین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں، انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں، تو درود ان پہ پڑھا کرو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، تیرے نام نے جو نشہ دیا، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جمعۃ المبارک کا چونکہ دن تھا، میں نے درود پاک سے آغاز کیا، حمد باری تعالیٰ کی دو اشعار ہیں۔ گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا، گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا۔ الہی یقیناً گناہگار ہوں میں، بہت ہی برا ہوں، خطا کار ہوں میں، تیرے در پہ ہوں آ پڑا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا،
इल्तिजा मेरे मौला गुनाह हो गए और गुनाह से कभी भी न मैं बाज आया मगर रिस्क रोका न तूने खुदाया गुनाह से कभी भी न मैं बाज आया मगर रिस्क रोका न तूने खुदाया रही तेरी जारी अता मेरे मौला करम कर दे है इल्तिजा मेरे मौला करम कर दे है इल्तिजा मेरे मौला गुनाह हो गए बेबहा मेरे मौला करम कर दे है इल्तिजा मेरे मौला। और ये जो बंदगी का जो लुत्फ़ है और बंदगी का जो इजहार है अल्लाह के सामने बंदे का, अल्लाह को ये आजिज़ी ही पसंद है और ये जो बंदे का अल्लाह के आगे झुकना है, अपनी आजिज़ी का इजहार करना है, ये अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंदीदा है। कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से? एहसन मकसूद नक्शबंदी अर्ज कर रहा हूँ जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अफजल नशाही साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, फरमाइश करना चाहेंगे उनसे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अफजल भाई की खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहूँगा और सेकेंडली ये कि इनसे एक फरमाइश है कि बिला शेखुल इस्लाम तारिक कादिर साहब का लिखा हुआ कलाम है, तेरे होते जन्म लिया होता जी जरूर कभी तो तुझे मिला होता, उसके चंद अशार पेश करवाएं। जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वो ज़रूर कलाम पेश किया जाए। साहब आपने मैंने हम से आपसे गुजारिश की और आपने दुरूद पाक से आगाज़ किया। मैं चाहूँगा कि इस का थोड़ा सा पस मंज़र आप ज़रूर बताइए। पूरी दुनिया में माशाल्लाह ये अंदाज़ मकबूल है और दुरूद पाक को इस अंदाज से मकबूलियत से इस हवाले से पढ़ा जा रहा है, तो ये माशाल्लाह आपका एजाज़ है, आपके इदारे का माशाल्लाह एजाज़ है कि वहाँ से इसका आगाज़ हुआ है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सरवर साहब से बात करनी है। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप फरमाइए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपने टेलीविजन की आवाज़ अगर आप बंद कर लेंगे तो फिर आपसे बात मुमकिन होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से आपकी आवाज़ आ रही है भाई? मोहम्मद अनवारुल हक चुनिया से बात कर रहा हूँ नक्शबंदी साहब। जी आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब प्रोग्राम में। और क्या कहेंगे? मेहरबानी सर, ये 3 दिन चुनिया आए थे, आपको हमने सुनाया, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और अफजल नशाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी फरमाइश करना चाहेंगे तो, उनसे जरूर कीजिए। हमारी तो ये जो आपने नात पढ़ी थी चुनिया में, ये ना वो किनारे वाली वो नात सुनाते हैं इन्हें, क्या कि या आपको सुनाते तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। हमारे मेहमान आज मौजूद हैं और जरूर उनसे हम सुनते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं नईम शहजाद बोल रहा हूँ मक्का से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं नईम साहब। बहुत दूर से आप हमारे साथ शरीक हुए महफिल में और अफजल नशाही साहब मौजूद हैं, नात जिंदगी है देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बस मेरी बात अगर उनसे करवा दें। जी जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार मैं नईम शहजाद बोल रहा हूँ मक्का से। आप जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मेरे तो आंसू नहीं थम रहे आप दोनों को देख के कि मैं कैसे जानकर, मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे मिलके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया है जी, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन और कहाँ से हमारे साथ शामिल हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ अनम। जी आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी? नुशाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फरमाइश करना चाहेंगी। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और एक नात की फरमाइश करनी थी। जी बताइए। ये चमक ये धमक ये अच्छा। पवन ये महक। जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। आप सब हमारे साथ जब शामिल होते हैं, प्रोग्राम में कॉल करते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि अपना तारुफ़ करवाइए और साथ ही जो हमारे मेहमान होते हैं उनसे आप ज़रूर कोई फरमाइश करना चाहें तो फ़ौरन क्या करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें। एक और कॉलर इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अब्दुल अजीज सुफियानी इंडिया से। जी जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हैं और क्या कहेंगे? एक खौसे पाक के शान में एक मनक़बत सुनाए तो बेहतर है साहब। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर पेश करते हैं। बेहद शुक्रिया आपका। जी नुशाई साहब, मैं इससे पहले कि और कॉलर हमारे दरमियान हायल हो जाए, मैं पूछना चाहूँगा कि ये दुरूद पाक की तैयारी कैसे हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जैसे बयान फरमाया और इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपने एक माशाल्लाह एक कैफियत बांधी लोगों की, एक माइंड मेकिंग की, तो बिलाशुबा हुजूर के ज़िक्र के हवाले से जितनी दिल के अंदर चाशनी पैदा हो, लेकिन ये जो मजमून होते हैं ये उसको चाशनी को बढ़ाते हैं। और बिलाशुबा जो दुरूद पाक है वो सबसे बड़ी नात है, चूँकि इस नात को अल्लाह करीम खुद पढ़ता है। और फिर जुमे का दिन है और इस दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा सादत है। और ये जो अंदाज़ पाक आपने अंदाज मुझसे सुना, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में नात खान इसको पढ़ते हैं, बल्कि आलम अरब में अगर मैं गया तो वहाँ पर भी अरब लोग इसको कॉपी करते हैं। हमने ये अंदाज को शुरू किया और ये सादत हासिल हुई। और सबसे बड़ा अकल इस्लाम का करम यह है कि चूँकि इसको जहाँ पर मैं मदीना तैयबा में गया हूँ तो वहाँ पर भी पढ़ा जा रहा है। अभी पिछले दिनों हुजूर की बारगाह में अकल इस्लाम ने तलब फरमाया। और जहाँ फिर दुनिया भर में यूरोप कंट्रीज़ में जाता हूँ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाता हूँ तो ये हमारी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के जिक्र की। बहुत शुक्रिया। और ये इस हवाले से मैं चाहता था कि ज़रूर आपसे डिस्कस किया जाए और आपका ये जो अंदाज़ है इसके हवाले से ज़रूर लोगों तक बात पहुँचे। एक ब्रेक आपके और हमारे दरमियान हायल है, हम थोड़ी देर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। चेहरे अनवर सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए मुनव्वर 14वीं के चांद के हल्के और दायरे की मानंद दिखाई देता था। हजरत काब बिन मालिक बयान करते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए मुनव्वर से नूर की शुआएं फूटती दिखाई देती थीं। यूं लगता जैसे चेहरा अक़दस चांद का टुकड़ा हो, और इससे हम जान लेते कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के आलम में हैं। हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था। जी आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में और मोहम्मद अफजल नुशाई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम उनकी आवाज़ से और उनके कलाम से हम सब मुस्तफ़ीद हों। बिस्मिल्लाह। एक सरवर साहब पंजाबी का कलाम है। जी बिस्मिल्लाह। सीने लाया मेहरबानी सोनिया सीने लाया मेहरबानी सोनिया सीने लाया मेहरबानी सोनिया मेरे वर्गे
नहीं दरबार दे मेरे वर्गे बीते लायक नहीं दरबार दे फिर भी अपना कर विखाया मेहरबानी सोनिया माड़िया सीने लाया मेहरबानी सोनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साडे वर्गे बियांदा हशर होना सी बुरा अपनी कमली विच लुकाया मेहरबानी सोनिया अपनी कमली विच लुकाया मेहरबानी सोनिया जान दे होया विशाह मेरे हर ऐब जान दे होया विशाह साडे हर ऐब फिर भी सब ते पर्दा पाया मेहरबानी सोनिया फिर भी सब ते पर्दा पाया मेहरबानी सोनिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। पंजाबी में बहुत खूबसूरत नात और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का, आपकी मेहरबानियों का, आपके इनाम व इकरामात का ज़िक्र कहाँ कर सकते हैं। जितनी रहमतें आपकी हम सब पे हैं उनका शुमार कैसे किया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद रशीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब, और क्या कहेंगे। मैं अब्दुल अचाई साहब को सलाम कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे एक नात सुनना चाहते हैं, फरमाइश है। जी जी नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। जी मैं पेश कर जी बहुत शुक्रिया जनाब रफ़ीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मैं चाहूँगा कि फरमाइशें भी हैं और कॉल्स भी आ रही हैं। क़िबला डॉक्टर तारुल कादरी साहब के कलाम के हवाले से फरमाइश आई थी और आपकी निस्बत और हवाला भी है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप कलाम पेश फरमाइए। तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, तेरे होते तू चला करता मेरी पलकों पर। सुभान अल्लाह वाह वाह। तू चला करता मेरी पलकों पर, अरे काश में तेरा रास्ता होता, काश में तेरा रास्ता होता, फिर कभी तो
और तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तू कभी तो मुझे भी तक लेता, फिर तेरे तकने में बिक गया होता, तेरे तकने में बिक गया होता, तेरे होते और जर्रा होता मैं तेरी राहों का, फिर तेरे तलवों को छू लिया होता, तेरे तलवों को छू लिया होता, तेरे होते और होता ताहे तेरे फकीरों में, फिर तेरी दहलीज पर पड़ा होता, तेरी दहलीज पर पड़ा होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। और ये कैसी ख्वाहिश है अहले मोहब्बत की कि मोहब्बत चाहती है कि उस दौर में हुआ जाए जिनसे मोहब्बत की जा रही है, जिनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खुशामदीद कहते हैं आपको। कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं? ज़िया बोल रहा हूँ दुबई से। जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं, और क्या कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? मैं प्रोग्राम के लिए कहूँगा कि माशाल्लाह QTV मुबारकबाद का मुस्तहिक है, जिन्होंने सरकार की मोहब्बत को उजागर करने के लिए दिन रात जो कोशिशां हैं माशाल्लाह, और ऐसे प्रोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा तरवीज होनी चाहिए। बेशक कि जो नए हमारे पढ़ने वाले हैं और जो पुराने हैं उनका संगम जो है उसका बेहतरीन इम्तजाज है ये प्रोग्राम। जी और माशाल्लाह आज अफजल शाही साहब आपकी गज़ल के जो हैं वो गेस्ट हैं। जी बिल्कुल, तो सुनकर बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। माशाल्लाह इनकी आवाज़ में अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक फरमाइश है। जी जी फरमाइए। कि सरवर भाई आपका एक पढ़ा हुआ कलाम है मोहम्मद नाम ऐसा है, वो अफजल शाही साहब ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। जी तो माशाल्लाह, उसके दो शेर हो जाए। जी तो मैं बहुत शुक्रिया, बिल्कुल कोशिश करते हैं जनाब, और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे आपने जज्बात का इजहार किया, और मैं चाहूँगा कि फरमाइश के दो अशार अगर आप पेश कर दीजिए ताकि प्रोग्राम जो है वो उसमें आगे की तरफ चलिए। जी मोहम्मद नाम ऐसा है। जी बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा हुआ है, और मैंने इसको ज़रा एक जिद्दत के अंदाज में रिकॉर्डिंग इसकी करवाई। बिस्मिल्लाह। तो बिलाशुबा आका अलैहिस्सलाम का नाम नामी बड़ी बरकतों वाला है। बेशक बेशक। दिलों से गम मिटाता है, वाह वाह, मोहम्मद नाम ऐसा है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान। दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से रोशन रुते फिर लौट आती
वाह वाह सुभान अल्लाह। उन्हीं के नाम से रोशन रोते फिर लौट आती हैं। अरे नसीबों को जगाता है सुभान अल्लाह। मोहम्मद नाम ऐसा है नसीबों को जगाता है। मोहम्मद नाम ऐसा ऐसा ऐसा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जनाब जाहिद फ़खरी की खूबसूरत नात पेश कर रहे थे जनाब अफजल नशाही, और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं? मैं जी मोहम्मद सदीक पाशा जी तकवाल से बोल रहा हूँ। जी जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में क्या कहेंगे? मैंने जरा अब्दुल नशीद से बात करनी थी। जी आप कीजिए अब्दुल नशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल नशीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब सर जी बड़ी खुशी हुई सर आपको देख के। अल्लाह आपको बरकत दे जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक कलाम सुना था आपसे। जी जी हुक्म फरमाए। सल्ले अला पढ़ के सुना देगा। जी ठीक है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप खुशामदीद कहते हैं। कौन और कहाँ से हमारे साथ हैं? मैं अमूकी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इजाज सलीम, बज़्म एहसान के प्लेटफार्म। जी जनाब खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको, और मजलिस एहसान के दो उस फैज़ याफ्ता इस वक्त तशरीफ फरमा है जी, हाजिर हैं। मजलिस एहसान से फैज़ याफ्ता दो अहबाब हाजिर हैं, क्या कहेंगे आप? अफजल नशाही साहब मौजूद हैं, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? इनसे एक फरमाइश है, हुजूर आप आए वो सुना दें। जी जनाब बहुत शुक्रिया। और फरमाइशें नशाही साहब बहुत सी हैं, और यकीनन सब पूरी करना जो है वो मुमकिन नहीं होता, लेकिन मोहब्बत होती है अहबाब की, और जब देखते हैं तो सुनने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप चंद जुमलों में शेयर कीजिए कि जब कोई नात पढ़ने वाला हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अभी आप माशाल्लाह होके भी आए हैं, तो उन कैफियत को एक जो नात पढ़ने वाला है वो कैसे महसूस करता है, और उसके दिल पे उसकी कैफियत कैसी होती हैं, वो चाहूँगा कि चंद जुमलों सुभान अल्लाह। ये बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई। मैं इसमें ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा स्कॉलर के हवाले से जी जी कि मेरे और आपके उस्ताद मुकर्रम क़िबला मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जी कि जिनका हम पर एहसान है, और जिनकी वजह से हसान फिर बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी जो नात का हल्का है, जितनी भी नात सुनने वाले लोग हैं, उनको जो बुनियादी फराहम करने वाले क़िबला ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जी, तो बिलाशुबा ये तज़किरा आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का उनकी नात में जा बजा मिलता है। लेकिन मदीना पाक का तज़किरा उन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाया अपनी नातों में। आपने बहुत सारे कलाम उनके पढ़े हैं, लेकिन एक बात जो है वो इतनी बड़ी हकीकत है कि जब हम नात पढ़ते हैं तसव्वुर में आका अलैहिस्सलाम की ज़ात तैयबा होती है कि हम उस शहर पाक का दीदार करें जिसकी कसमें अल्लाह खाता है, उस गुंबद खजरा को देखें, और फिर साहब गुंबद खजरा का हमें दीदार हो माशाअल्लाह। तो जब आप उस बारगाह में पहुँच जाएँ, फिर वहाँ पर नात पढ़ें तो कैफियत क्या होंगी, ये आप बखूबी इसका अंदाज़ा कर सकते हैं जो जाते हैं। और फिर जब वहाँ से वापस पलटते हैं तो फिर तड़प पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर नात पढ़ने की कैफियत क्या होती है, बस एक फिर वसल के साथ एक कैफियत है हुजूर की बारगाह में नात पढ़ने की, एक जुदाई के साथ कैफियत है, और उरफा ने दोनों कैफियत अपने कलामों में बयान की है। कोई ख़ास नात में चाहूँगा जो आप वहाँ पढ़ते हैं तहतुल लफ्ज़ में, कोई शेर जो वहाँ जाके मुसलसल गुनगुनाया जाता हो, खुद ब खुद जुबान पे आ जाता हो? वो एक ज़हूरी साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह की पंजाबी की एक नात है कि तातुल लफ्ज़ में कि फुल हंजुआं दे पलकां उत्ते आप सजावांगे, वाह जेड़े वेले असी रल के मदीने जावांगे। और बड़ा खूबसूरत शेर जो फरमाते हैं, और वो एक हदीस पाक के तनाज़ुर में भी है
کہ ہور وظیفہ کی کرنا ہے چج نہ کوئی آوے روزے پاک نو ویکھاں گے بس ویکھی جاواں گے. اور یہ وہ کیفیات ہیں جو حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے والوں کی ہوتی ہیں اور وہاں پہ پہنچنے کی خواہشات ہوتی ہیں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آخر میں چند اشعار چونکہ میں نے ذکر کیا تھا اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, اس پہ آپ کو دعوت فکر دی تھی کہ کس مضمون کا شعر حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, اور اسی مضمون کے معراج پاک کے حوالے سے چند اشعار پیش کر کے آخر میں قبلہ نشائی صاحب سے ہم ایک کلام سنتے ہیں. معراج پاک کے واقعات کو آپ سامنے رکھیے اور اس تناظر میں یہ اشعار سماعت کیجئے کہ جب چلے مصطفیٰ آسمان سے پرے, جب چلے مصطفیٰ آسمان سے پرے, وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پرے, وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پرے, اور شاہ ارض و سما کے پڑے جب قدم, شاہ ارض و سما کے پڑے جب قدم, نور ہی نور تھا کہکشاں سے پرے, اور حیرتیں رشک سے دیکھتی رہ گئیں, حیرتیں رشک سے دیکھتی رہ گئیں, وہ گزرتے گئے ہر مکان سے پرے, اور اپنے خالق سے ملنے گیا آج شب, اپنے خالق سے ملنے گیا آج شب, ایک بشر سرحد قدسیاں سے پرے, اور عبد ہے اور شے عبد ہو اور ہے, یہ حقیقت ہے وہم و گمان سے پرے, اور آج کی شب کہا عشق نے عقل سے, اس یقین کا سفر ہے گمان سے پرے, اور منزل مدحت شاہ پیغمبراں سرور بے ہنر کے بیان سے پرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے احباب کا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور بہت سی دعائیں آپ سے لینے کے ساتھ اجازت دیجیے. میزبان سرور نقشبندی کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بان. یہ کلام اردو میں سرور صاحب اس دفعہ جہاں بھی میرا جانا ہوا ملک سے باہر, یورپ کنٹریز میں, مڈل ایسٹ میں, یہ بہت مقبول رہا مدینہ پاک کے حوالے سے. شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے, شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے, تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے, شہر